Okay, so I think we will come back to him again. So we will move on to the next guest speaker for the program, Mr. R. Bali or L.R. Bali. Uh, just to introduce about himself, actually, uh, let me start with the age. So he's 90 year of age. He is a social activist. He was the editor of Bhim Patrika. He worked himself with Baba Saheb. He also hold key position in the esteemed Ambedkarite organizations, like he was the general secretary of Scheduled Caste Federation, which is SCF. In 1956, after Baba Saheb passed away, there was a resolution passed to disband SCF, and that's the way we formed the RPI. And he was also the general secretary for RPI, or Republican Party of India, from 1960 to 1966. He was the chairman of All India Samta Sainik Dal, which was founded by Baba Sahib himself in 1921. He raised his voice and opposed various Dalit atrocities like the Bholi Kand, Talhan Kand, and he was arrested for various public causes. So it is my honor actually to introduce him. But before we go to our guest of honor, we would like to first talk to his son, Mr. Anand Bali, and he's there from joining us from Canada. So Anand Baliji, over to you. Thank you, Namabuddhaya, Jai Bhim to everyone. And first of all, I want to congratulations to everyone on Bodhisattva Baba Dr. Ambedkar birthday, 129th birthday we are celebrating. So at the beginning, I want to say thank you to Jagdish Bankarji and entire his team. So this is the proving that nothing can stop us, no matter what kind of virus coming. And I know we all locked down, all sitting at home, but with the technology and all that there, we all in one, we sitting in one room and join in the nation and international wise. So for further ado, I would like to introduce Mr. Baldev Bharadwaj, who is in Punjab, and also he's working actively in Ambedkar Mission, Punjab Jalandhar, and also he's trustee of Ambedkar Bhavan Jalandhar. He's been working in the mission for last 40 years. So he's the one who organized and arranged all the ITs for my father Sahib to speak on this call. So I wanted to introduce Mr. Baldev Bharadwaj. So he will take further. Bharadwaj, please unmute yourself and come on the live. Thank you. Sorry, we can't hear you. Sorry. Baldev, you might be mute. Ambedkarite Buddhist Association of Texas, who has arranged such a vast arrangement for celebrations of Dr. Baba Saheb Ambedkar's birth anniversary. I think most of the introductions have been given about Shri L.R. Bali already. So now I want to speak that Shri Bali ji can speak fluently in English, Punjabi, Hindi, Urdu, but I will request him to speak in Hindi as the majority of our people understand Hindi. So I request to Shri Bali ji. मैं तमाम लोकाई को बाबा साहब अम्बेडकर के 129वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट एसोसिएशन टेक्सास अमेरिका, विशेषकर जगदीश बंकर जी और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। आज लगभग सारा
विश्व, जिसमें भारत भी बड़ी मुश्किल में है। कोरोना महामारी के कारण सारी दुनिया इस वक्त बहुत फिक्रमंद है। हजारों लोग मर रहे हैं और भारत में भी न केवल लोगों की मौत हुई है, बल्कि जो मजदूर दिहाड़ी दिन भर काम करके खाते कमाते थे वो सड़कों पे है, भूखमरी का शिकार है और उनकी सरकार मदद भी कर रही है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में होने के कारण मदद जो है इतनी संभव नहीं हो रही। आज मौका ये है कि तमाम लोगों को, तमाम संस्थाओं को, विशेषकर धार्मिक संस्थाओं को और मंदिरों को सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए। महाबोधि विहार बुद्ध गया ने अपना हिस्सा डाला है। पंजाब का एक डेरा है बन्ना, उन्होंने भी कुछ उसमें सरकार की मदद में पैसा दिया है। तो मेरा पहला निवेदन ये है कि तमाम राजनीतिक मतभेद को भूल करके सब लोगों को इस महामारी के को जीतने के लिए अपना हर तरह का सहयोग देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ लिखना सीखा वो बाबा साहब अम्बेडकर से ही सीखा है। 1948 से लेकर 1954 तक 54 तक मुझे उनके चरणों में बैठने का, सीखने का मौका मिला है और इसलिए मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत अम्बेडकराइट समझता हूँ। पहली बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो किसी जात, किसी फिरके, किसी विशेष विचारधारा के नेता नहीं हैं। वो इंसान और इंसानियत के नेता हैं। पहली बात हमें दुनिया के अंदर ये बड़े जोरदार शब्दों में बतानी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर इंसान की बेहतरी और बहबूदी के लिए, इंसान की खुशहाली के लिए और इंसानियत की सरबुलंदी के लिए बाबा साहब ने अपना सारा जीवन निछावर किया है। अब मैं इसकी एक दो मिसालें देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने इंसान को तर्कशील बनाने के लिए कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक समानता लाने के लिए कहा। बाबा साहब ने इंसान को नैतिक बनने के लिए कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इंसान को इंसाफ पसंद बनने के लिए कहा और उनका जितनी भी गतिविधियां हैं वो इन तमाम बातों पे आधारित हैं। तो उन्होंने जो भी संघर्ष किया, जो भी बलिदान किया, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए, वो तमाम इसी विचारधारा के आसपास घूमते हैं। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने तर्कशील का मतलब है केवल इंसान को ही मानना। तो तर्कशील का संविधान सभा में भी एच.बी. कामत ने ये रेजोल्यूशन पेश किया कि हम भारत के लोग के शब्दों से पहले इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर लगाया जाए। यानी एच.बी. कामत ने जो प्रस्ताव रखा, इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे 4 लोग और थे जिन्होंने ईश्वर का नाम पहले लगाने के बाद हम लोग का शब्द लगाने के लिए कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी नहीं मानी। उन्होंने हम लोग ही को प्रेफरेंस दी, तरजीह दी, प्रायोरिटी दी। तो ये उनकी तर्कशीलता का सबसे बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ी परीक्षा है और सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद समतावादी समाज
समतावादी समाज बनाने के लिए अगर हम संविधान के मौलिक अधिकारों को देखें तो उसमें क्या है? मौलिक अधिकार कहते हैं धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म, लिंग, किसी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मौलिक अधिकार हैं संविधान के, और इन मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बदल नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है। बाबा साहब ने यही नहीं बात छोड़ी, उन्होंने संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 13 में ये लिखा है, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा अध्यादेश, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी किसी तरह की प्रथा जो मौलिक अधिकारों से टकराती है उसको वाइड, उसको जीरो करार दिया जाता है। संविधान हीरो है और वो तमाम बातें जीरो हैं। तो संविधान बाबा साहब की विचारधारा का एक बहुत बड़ा आईना है, दर्पण है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी विचारधारा को संविधान के अंदर दर्ज करने की बड़ी कोशिश की है। ये ठीक है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने औरतों के लिए और दलित वर्गों के लिए ज्यादा काम किया, क्योंकि उनके लिए ज्यादा काम करने की जरूरत थी। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि वो इंसान के लिए काम करते थे, इंसानियत के लिए काम करते थे। अब देखिए, पहली मिसाल लीजिए आप पॉलिटिकल। संविधान सभा में ये सवाल पेश हुआ कि वोट का अधिकार किसको देना है, तो वहां पर एक प्रस्ताव आया कि जो ग्रेजुएट है उसको वोट का अधिकार दिया जाए। एक ने कहा नहीं, ग्रेजुएट बहुत ज्यादा तालीम का मियार है, जो मैट्रिक है उसको वोट का अधिकार देना चाहिए। बाबा साहब ने ये प्रस्ताव रद्द किए। उन्होंने कहा मैं वोट का अधिकार भारत के सभी वर्गों को दूंगा, और उन्होंने वोट का अधिकार सभी वर्गों को दिया, चाहे वो अमीर था, चाहे वो गरीब है, चाहे उसको आला कहा जाता है, चाहे उसको अदना कहा जाता है। और उसकी बना पर हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हमारे पास शुरुआत की गई। ये मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि जैसी लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे वैसा लोकतंत्र हमारे देश में पनपा नहीं, क्योंकि संविधान के ऊपर कार्य नहीं किया गया, संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। इसलिए हमारे देश में जैसा लोकतंत्र बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। इस लोकतंत्र को बाबा साहब ने अपने एक भाषण में कहा था कि है काम करने वाले लोगों, है वर्किंग क्लास के लोगों, तुम्हारे दो दुश्मन हैं, एक कैपिटलिज्म और दूसरा ब्राह्मणवाद। आज ये दोनों मिलके सरमाएदारी, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद, इन दोनों ने भारत के लोकतंत्र को हथिया लिया है। आज लोकतंत्र पैसे वालों का, आज लोकतंत्र अपराधियों का लोकतंत्र बन के रह गया है, और जो लोकतंत्र ने भारत के लोगों का भला करना था वो लोकतंत्र में भारत के लोगों का भला नहीं हो सका। ये बहुत अफसोस की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पहली पढ़त के लिए संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया तो उन्होंने कहा था अपने भाषण में, जो रिकॉर्डेड है, कि अगर इस संविधान से लोगों का भला नहीं हुआ तो कहना ये पड़ेगा कि संविधान बुरा नहीं है, उसको चलाने वाले लोग ही दुष्ट हैं। ये बाबा साहब के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। संविधान जो बाबा साहब ने बनाया उसको वंडरफुल डॉक्यूमेंट कहा जाता है।
एक अंग्रेज, ऑस्टन नाम के अंग्रेज ने संविधान के ऊपर किताब लिखी है, उसका पंजाबी में भी अनुवाद हुआ है। वो कहता है कि भारत का संविधान ऐसा है जो सोशल रेवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति भारत में ला सकता है, और इस संविधान के द्वारा सामाजिक क्रांति आनी चाहिए थी, ये उसका कहना है। और फिर आज बाबा साहब अम्बेडकर अपनी एक किताब में, जिसका नाम है हु आर द शूद्रस एंड हाउ दे बिकेम द फोर्थ वर्ण, शूद्र लोग कौन थे और वो चौथा वर्ण कैसे बने, उसकी भूमिका में कहते हैं कि विमाना नाम का एक कवि है, मैं उसकी कविता का से ढाढ़स लेता हूँ कि कोई समय आएगा मेरी बात पे लोग ध्यान देंगे। आज इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर, विशेष तौर पर भारत के अंदर, जब लोगों ने प्रदर्शन शुरू किए नागरिक संशोधन बिल और बाद में एक्ट के खिलाफ, तो चाहे वो शाहीन बाग दिल्ली हो, हैदराबाद हो, और चाहे बंगलौर हो, चाहे तमिलनाडु हो, सब जगह लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा करके अपने प्रदर्शन शुरू किए। ये इस बात का सबूत है कि बाबा साहब का विचारधारा सच्ची विचारधारा है, जो हमारे देश को आगे ले जा सकती है, जो हमारे देश को तरक्की की तरफ ले जा सकती है। अब देखिए बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को बदलने के लिए उन्होंने बार बार कहा कि मेरा झगड़ा ब्राह्मणवादियों से बुनियादी है, मेरा झगड़ा सतही नहीं है, मेरा झगड़ा साधारण नहीं है, मेरा झगड़ा बुनियादी है। बुनियादी झगड़ा क्या है? वो झगड़ा ये है कि उनका आइडियल, उनका आदर्श गलत है। उनका आदर्श इसलिए गलत है क्योंकि उनका धर्म गलत है। क्योंकि मेरा झगड़ा उनसे बुनियादी है, और बुनियादी इसलिए है कि उनका आदर्श जो है वो उनके धर्म के कारण गलत है। इसलिए बाबा साहब ने सैकड़ों वर्षों के बाद भारत में पहले बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म को बहाल किया, बुद्ध धर्म को रिवाइव किया। रिवाइव ही नहीं किया, 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने स्वयं बुद्ध धर्म की भिक्षु चंद्रमणि से दीक्षा ली, और अगले दिन उन्होंने लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसमें बड़ा एक बुनियादी सवाल उन्होंने पैदा किया। उन्होंने 1954 में शासना कौशल वर्मा को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में बुद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। वो कहते हैं कि भिक्षु के लिए उपसंपदा थी, भिक्षु के लिए भिक्षु बनने के नियम थे, लेकिन बौद्ध उपासक के लिए, बौद्ध उपासका के लिए कोई नियम नहीं थे, इसलिए बुद्ध धर्म का पतन हुआ। तो 14 अक्टूबर 1956 के दूसरे दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, उसमें 22 प्रतिज्ञाएं भी शामिल की, और वो 22 प्रतिज्ञाएं जो है वो लाजमी बुद्ध धर्म की दीक्षा का हिस्सा है। जितना धर्म के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया है, मेरे विचार में शायद ही
किसी महापुरुष ने इतना अध्ययन किया हो। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी एक रचना में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग ए स्पीच के खंड 3 में कहते हैं, 24 पृष्ठ पे वो कहते हैं, रिलीजन इज लाइव वायर, रिलीजन इज लाइव वायर। धर्म जो है एक सजीव बिजली की तार है, एक चालू तार है। अगर इसको छुएंगे तो मौत के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो बाबा साहब कहते हैं, धर्म दीक्षा हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए और देश की सर्वपक्षीय आजादी के लिए धर्म दीक्षा होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाबा साहब ने धर्म दीक्षा के नियम बनाए, जो सभी किताबों में लिखे हुए मिलते हैं। मैंने जो किताब लिखी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन और मिशन, उसमें ये तमाम चीजें मैंने दर्ज की हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर को हमें एक महान आदर्शवादी, महान सिद्धांतवादी, एक महापुरुष के तौर पर पेश करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, एक विचारधारा का नाम है। उन्होंने कहा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये उनकी विचारधारा के सार हैं। लिबर्टी, अब लिबर्टी का मतलब आजादी होता है, लेकिन बाबा साहब इसको आगे जोड़ते हैं। वो कहते हैं आजादी में मानसिक आजादी भी शामिल है। वो कहते हैं एक आदमी जेल में बैठा है, लेकिन वो मानसिक तौर पर आजाद है, तो वो जेल में बैठा हुआ भी आजाद है। लेकिन एक आदमी सड़क पे घूम रहा है, लेकिन वो मानसिक तौर पर आजाद नहीं, तो वो सड़क पे फिरता हुआ भी गुलाम है। इसको बाबा साहब कहते हैं लिबर्टी। इक्वालिटी, बाबा साहब कहते हैं समाज के अंदर बराबरता होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो औरत को मर्द के बराबर वोट का अधिकार दिया। ना केवल ये, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर को औरतों की भलाई का योद्धा कहा जाता है। अम्बेडकर को औरतों की तरक्की का, औरतों की आजादी का योद्धा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल हिंदू औरतों की आजादी का दस्तावेज है। हिंदू औरत तलाक नहीं दे सकती थी, चाहे उसका पति शराबी हो, उसका पति जुआरी हो, उसका पति पैसा कमाता हो, घर में नहीं देता हो, तो औरत जो है उसको अधिकार नहीं था कि वो तलाक दे। क्योंकि कहते थे कि जो शादी आसमान में बन गई है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको तलाक नहीं दिया जा सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने औरत को सबसे पहले तलाक का, डाइवोर्स का हिंदू कोड बिल में अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने औरत को राजनीतिक अधिकार के साथ साथ प्रॉपर्टी का, अपने पति की, अपने ससुराल की प्रॉपर्टी में जमीन जायदाद का हिस्से का अधिकार दिया। ऐसे और बहुत सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने औरत को दिए। इसलिए उनको औरतों की भलाई का योद्धा कहा जाता है। इसी तरह जो दलित वर्ग है, मैं केवल दलित शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा है, मैं कह रहा हूँ दलित वर्ग, वो वर्ग, वो क्लास, जो जमात जिनको पैरों के नीचे कुचला गया,
बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलित वर्ग। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए जो काम किया उसके लिए बहुत सारे गलती से उनको दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन वो केवल दलितों के नेता ही नहीं थे, वो इंसानियत के नेता थे। जैसे मैं कह रहा हूँ, संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ दलित वर्गों को, अनुसूचित जातियों को राजनीतिक रिजर्वेशन का अधिकार दिया, वहां पर उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का अधिकार दिया। इसके अलावा संविधान के अंदर एक बहुत विशेष बात है, संविधान के अंदर एक बहुत विशेष बात है कि संविधान में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पहले था कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर इसके बाद इसके दो कमीशन बन गए, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन जो है वो हर साल अगर जरूरत पड़े साल में 2 बार राष्ट्रपति को सारे देश में से अनुसूचित जातियों की क्या हालत है, उनकी नौकरियों की क्या हालत है, उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, उनके साथ कैसे जुर्म जबर हो रहे हैं, इनकी एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति कमीशन की उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर बहस के लिए पेश करेगा। लेकिन अफसोस है कई सालों से कमीशन ने ना तो रिपोर्ट दी और ना राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट के अंदर उस रिपोर्ट को पेश किया। इसलिए आज ये हमारे सामने स्पष्ट नहीं है कि हमारे दलित वर्गों की हमारे देश के अंदर क्या हालत है, कैसी हालत है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के अंदर दलित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान देश संविधान के अंदर विशेष आर्टिकल लगाए। बाबा साहब चाहते थे हमारे देश के अंदर समाजवाद के तौर पर देश का राज का चले, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका है। उसका कारण ये कि संविधान उन लोगों के हाथ में आ गया है जो लोग नहीं चाहते कि देश के अंदर समाजवाद जो है उसको लागू किया जाए। तो इसलिए आज मैं विदेशों में बैठे हुए अपने तमाम अम्बेडकराइट और बौद्धिस्ट भाइयों को, जिनमें से आज जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, मैं उनको बहुत शाबाश देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको सारी दुनिया में उजागर करने का बहुत बड़ा योगदान दिया है। यूएनओ तक में उन्होंने अपनी फरियाद हमारी देश की पहुंचाई है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उनसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक ऐसा फंड क्रिएट करें, एक ऐसा फंड बनाए जो हमारे देश के अंदर बुद्ध धर्म का तर्कशीलता का, बुद्ध धर्म का मतलब है तर्कशीलता, बुद्ध धर्म का मतलब है नैतिकता, बुद्ध धर्म का मतलब है मानसिक आजादी। इसका प्रचार करने के लिए उन सबको बहुत ज्यादा एक फंड क्रिएट करना चाहिए ताकि
हम लोग जो है भारत के अंदर बहुत बड़ा काम कर सके। अभी कनाडा के अंदर जयदेव और उनके साथियों के उत्साह के कारण, मेहनत के कारण कनाडा के एक प्रांत में डे ऑफ इक्वालिटी, समानता का दिन 14 अप्रैल को मनाया जाना है। तो मैं अपने तमाम विदेशों में रहने वाले भाइयों से, बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस 14 अप्रैल को इंटरनेशनल समानता का दिन, डे ऑफ इक्वालिटी मनाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाए, इसके लिए यत्न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। Jai Bhim, and thank you, Bali sir. We are honored to have you amongst us, and we really look forward for your guidance and continuous guidance to us, and that's important for us, I think. So thank you once again, Bali sir. So with that, just a reminder, so I would request everyone to go on mute. So I think there are few offenders, so I don't want to call out, but please go on mute because it creates some confusion or diversion, especially for the speakers. So please follow the guidelines or the rules which we have set up. So that being said, we will move on to Mrs. Maya Hiwale. So she would be singing us a Bhim Geet. She's from Navi Mumbai, Vashi. Mrs. Maya Hiwale, are you there? Okay, I think we will come back to her. So we'll skip that and then we will go to Mr. Okay, I think we will go to Mr. Ravindra Badsod. He's from Pune and he would like to sing a song, Bharatiya Ghatnesa Tu Shilpakar Ahe. Mr. Ravindra Badsod, are you there? Oh, yes, I'm here. Yeah, please go ahead. Oh, Jagdish, will you hear me? Yeah, we are able to hear you. Please go ahead. Okay, so I'm singing one of the songs. That is one of my favorite songs. एकदा आपल्याला काही येतं नाही मोबाईल मधून ते तर बरोबर आवाज आपल्याला
कंधना तुझे अम्पा फूल लो तिहारा फूल लो तिहारा सुगंधा बड़ी तम कीर्ति दिगंधा तुम्हारे दिगंधा तुम्हारे भारतीय रत्न का तू शिल्पकार आहे सुगंधा बड़ी तम कीर्ति दिगंधा तुम्हारे Thanks, Jagdish, for coming in and all the good Thank you, Dr. Bansod. That was wonderful singing, especially considering multiple gadgets you have to juggle through. So thank you once again. So looks like we have Maya Hiwale. From Navi Mumbai. Are you able to hear us? Okay. If not, then we will move to our. I think he's there with 1+60. That is what is his. Exactly. Yeah, that's why I was saying that, because they are not mute, and they wanted to sing. Okay. So I want to give that opportunity to them. Okay, so I think we will try one more time. So with that, we will move to our another generation of Ambedkarite, Madhu Chauhan. She's from Detroit, Michigan. She's going to share some thought about Baba Saheb. She's the daughter of Vivek Chauhan. So Vivek ji, are you there? Yes. Go ahead. Yeah, please go. J-Beam, everyone. Can you guys hear me? Yes. We are here to celebrate the 129th birthday anniversary of Dr. Baba Saheb Ambedkar, the father of the Indian Constitution. In the Indian Constitution, Ambedkar put the essential principles of democracy, equality, and freedom of religion. Also, the practice of discrimination against untouchables was abolished. Knowing that he was the founder of the Constitution, it gave many people hope and pride. His work created a pathway for people to notice our voices. In October 1956, Baba Saheb started the Dalit Buddhist movement, which rejected Hinduism and challenged the Indian caste system. He converted to Buddhism with 500,000 others. Ambedkar's message reached millions of people across India that there are mass conversions almost every day. This day reminds us of the sacrifices Baba Saheb made for our community and the challenges he faced to give us the Buddhist identity. His work also impacted the daily lives of women. Some rights that were given to Indian women were equal pay for both men and women. Citizens can't be ineligible for employment because of their gender, and they have to provide humane conditions and maternity leave. Today we have gathered humbly to show our gratitude to Baba Saheb for treating us as human beings. We would still be in the dark if it wasn't for him. He has made a big impact in our lives and continues to inspire people with his work. His compassion motivates us to work together and fight for social justice and equality for everyone in India. Our work is long and enduring, but we can make a difference if we work together. Thank you. Yep. So thank you, Madhu. This time I was on mute, so it was nice. Small red. Okay. So I think let's move on. We will go to Trupti Vasnik from Detroit again, and she would like to sing a song, Mahadacha Tadacha Pani. Trupti, are you ready? Jai Bhim, everybody. Can you guys hear me fine? Yes. Okay. For many of us, Dr. Ambedkar Jayanti or Dr. Ambedkar's birth is the biggest celebration of the year.
But I think with the COVID situation in the place, I think this year Dr. Ambedkar Jayanti would be look little different. Since I grew up near in Uttar Nagpur near Bihar, most of the time I have seen massive gatherings, visiting to Chatyabhumi, Diksha Bhumi, a lot of different gatherings. But I think there will be no massive gathering this year. So stay home, stay safe. So this year it's a day of celebration. It's a day to value a special person who taught all of us the lesson of self-confidence by giving us the education. So here's the song written by Sachin Mali and sang by Sheetal Sate. महाडच्या तळ्याचं पाणी पेटलं ग बाई, महाडच्या तळ्याचं पाणी पेटलं ग बाई, त्या तळ्यात माझ्या भीमाची छवी भेटल ग बाई, त्या तळ्यात माझ्या भीमाची छवी भेटल ग बाई, माई ग माझी माई रमाई आई ग, माई ग माझी माई रमाई आई ग, भीम नावाचा इवला रूप दारी लाविल ग, भीम नावाचा इवला रूप दारी लाविन ग, त्या रूपाचा बोधी वृक्ष आभाळी जाईल ग, त्या रूपाचा बोधी वृक्ष आभाळी जाईल ग, माई ग माझी माई रमाई आई ग, माई ग माझी माई रमाई आई ग. Thank you. Wonderful, Trupti ji. We didn't know that you had such a good talent in there. Very nice sung song. So, moving ahead with the program, we have our Abats Vaishali Rangari, who is going to sing another song. So, Vaishali, are you ready? So actually, I recorded the song because it was not coming out properly. I just tried. So I've given my song to Shirish. So he was about to play. So Shirish, can you play? Yes. Thank you.
ऐकूच नाही येते ना मग, तर मग बंद करायला सांगतो. Wonderful, Vaishali. Even with little bit breaks in it, I think it was very melodious. We all know how beautiful voice you have, and you are you sing very well too. Thanks for your a beautiful song for us. Thanks a lot. So with that, I think we need to move on, and we have a celebrity singer and actor with us, Mr. Shirish Pawar, who has joined all the way from Mumbai. He's like actor and singer of the famous nominated film Court. He has done more than 5 Indian Marathi films as singer. He is assistant director, he's singer and actor of 5 national award winning director with Sumitra Bhave's film Dhiti. And he is also a radio jockey on All India Radio for last 8 years. He is also has his own Anusaya Arts Private Limited, which has wonderful production house, the film production house. So with that, Shirish, it's all you. Welcome to the program, and thanks for accepting our invite. Thank you very much to all of you, and wish you all Dr. Baba Ambedkar Jayanti. So, and thanks to my sister Shilpa Khanka, she invited me for the program, and I'm really glad. I'm really impressed. First time I'm celebrating this digital Jayanti, worldwide Jayanti, and really thanks to the organizers. Here I'm going to present 2 songs with you, but before that, I have to speak something about डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अभी के फिलहाल जो सब स्थिति चल रही है लॉकडाउन और इस चीज के बारे में, तो 4 शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि सफर की बात क्या करे यारो, सफर हमारा जारी है। सफर की बात क्या करे यारो, सफर हमारा जारी है। बस इतना समझ लो कि वक्त हम पर भारी है। अब हमें ऐसी कोई मंजिल नहीं चाहिए। डॉक्टर भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें एक नई मंजिल दी है, इसलिए कवि कहते हैं अब हमें ऐसी कोई मंजिल नहीं चाहिए जिसे हर किसी ने छुआ हो। अब हमें ऐसी कोई मंजिल नहीं चाहिए जिसे हर किसी ने छुआ हो। मंजिल के उस पार एक नया रास्ता बनाने की तैयारी है। सफर की बात क्या करे यारो, सफर हमारा जारी है। मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ कि पूरे वर्ल्ड में से इतने सारे लोग हमारे भीम बांधव इस जयंती को हम सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए महाकवि वामन दादा कर्दम जी की ये 4 लाइनें मैं शुरुआत में गाऊंगा और उसके बाद एक वामन दादा का ही गीत मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले
उससे पहले वामन दादा कहते हैं, अरे पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो। मैं बहुत टाइम से सबको सुन रहा हूँ, कमलेश मैडम ने भी बहुत बढ़िया तरीके से बाबा साहब को प्रेजेंट किया। उसके बाद हमारे बाली सर ने ही बहुत दिल से बाबा साहब के बारे में कहा। इसलिए हमें कैसे बाबा साहब चाहिए, वामन दादा लिखते हैं, और पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, अरे एक नया अंबेडकर पैदा हो, पैदा हो, एक नया अंबेडकर पैदा हो। ये जो अंबेडकर पैदा हो, ये विचारों का अंबेडकर हो। इसलिए वामन दादा कर्दक जी कहते हैं, किसी को घर मिला भीम का तो किसी को जर मिला भीम का। जर माने पैसा। इस पैसों की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत आप अमेरिका में है, मिशिगन में है, कोई अफ्रीका में है, कहाँ है, पूरे जग भर में। किसी को घर मिला भीम का तो किसी को जर मिला भीम का। कागज की छपी गठड़ी में वामन को सर मिला भीम का, वामन को सर मिला भीम का। इसलिए वामन दादा कहते हैं, अरे पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, पैदा हो, पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, अरे एक नया अंबेडकर पैदा हो, पैदा हो, एक नया अंबेडकर पैदा हो। वामन दादा कहते हैं, सर झुकाने वाले तेरा सर क्या है, अरे सर झुकाने वाले तेरा सर क्या है, अरे सर में तेरे भीम का सर पैदा हो, पैदा हो, सर में तेरे भीम का सर पैदा हो। समानता की भाषा वामन दादा इस कविता में, इस गीत में करते हैं। अरे झोपड़ों में रहने वाले लोगों के, झोपड़ों में रहने वाले लोगों के, अरे झोपड़ों में रहने वाले लोगों के, अरे ऊंचे ऊंचे नगर महल पैदा हो, पैदा हो, ऊंचे ऊंचे नगर महल पैदा हो, पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, अरे एक नया अंबेडकर पैदा हो, पैदा हो, एक नया अंबेडकर पैदा हो। जब भी इसके बाद एक और वामन दादा कर्दक का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग यहाँ पर मैं गाने जा रहा हूँ, जो ओरिजिनल सॉन्ग है, जो रिटन एंड कंपोज बाय मिस्टर आनंद शिंदे एंड संग बाय प्रहलाद दादा शिंदे। ये हमने थोड़ा रिवाइज किया था, इस गाने को थोड़े वेस्टर्न टाइप से करने की कोशिश की थी, जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। Hope you all people can enjoy with us. Yeah. वर्ण गंधर गुणों पे तन कुसुम संतति पूजयामि मुनिंदत्त श्रीपाद सरोरुहे। चांदण्याची छाया कापराची काया, चांदण्याची छाया कापराची काया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, चांदण्याची छाया
माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया. थँक्यू. सोची पहला तारा देत होत तारा, सोची पहला तारा देत होत तारा, आईचा उबारा देत होत तारा, आईचा उबारा देत होत तारा. भीमाई परी पिढ्या पिढ्यावरी, भीमाई परी पिढ्या पिढ्यावरी, पंख पांघराया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया. बोलतारे विकासाची भाषा, बोलतात सारे विकासाची भाषा, लोपली निराशा, लोपली निराशा, लोपली निराशा, लोपली निराशा. 7 कोटी मध्ये विकासाचा आधी, 7 कोटी मध्ये विकासाचा पाया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया. Last stanza of the song. झाले नवे नेते मला इथे धानी, झाले नवे नेते मला इथे धानी, वामनता म्हणते दुनियात भरी, वामनता म्हणते दुनियात भरी. झुंज दे खरी रामकुंडावरी, झुंज दे खरी रामकुंडावरी. दगड गोट काया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया. आंधण्याची छाया कापराची काया, आंधण्याची छाया कापराची काया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया. Thank you, thanks a lot, and Jai Bhim, really Jai Bhim to all of you. Once again, happy Jayanti. Thank you, team. Thank you, Shirish. Just wow. You know, like. Thank you, thanks a lot. शब्द नाहीये, एकच नंबर. बोला. Thank you.